ہونے سے بچنا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا پازیٹیولی اس پہ کام کرنا پڑے گا تاکہ ہماری دوستیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو تھوڑا پازیٹیو کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ والا ہفتہ فار شور اللہ کا شکر ہے کہ خاتمہ بھی بالخیر ہو رہا ہے اور اللہ کے حکم سے جو ہے آغاز بھی خیر سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک اسی طرح رشتوں کی مضبوطیاں جو ہیں، ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے۔ مال اللہ پاک نے اتنا ہی دینا ہے جتنا نصیب میں لکھا ہے، اصل تو امتحان ہے رشتوں کو سنبھالنا، رشتوں کو لے کے چلنا، رشتوں کو جوڑ کے چلنا، تو جو ہے یہ اصل امتحان ہے جو انسان کی زندگی میں اس کو دینا ہے۔ تو جی یہ آ گیا ٹورینز کا اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں، اگلا ستارہ ہے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، اور جن کے پاس اگر کسی بھی وجہ سے اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام میری طبیعت کو معاف کیجیے گا، جب سے اماں گئی ہے نا، شاید امیون سسٹم ختم ہو گیا ہے، ہر چھوٹی موٹی چیز بہت جلدی مجھ پہ اٹیک کر رہی ہے، تو میرے لیے تو خاص دعا کیا کیجیے۔ آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں۔ اچھا جی، زون اے کا تیسرا ستارہ ہے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا والے جو لوگ ہیں، جن کے نام انگلش میں کنگ والا کے اور کوئین والا کیو سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں، انفارچونیٹلی اگر ان کے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو بھی میرا یہ جو ستارہ ہے بڑا دبنگ ستارہ ہے، اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے، آپ بالکل اس سے اپنا روڈ میپ جو ہے وہ زندگی کا بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 22 جون سے ہم اسے شروع کریں گے، 1 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اچھا جی، 22 اور 23 جون، ویسے تو ایک ستارہ یہاں پہ جیمنائی تھا جو کہ آپ کے دماغ کے سوئنگز بھی کبھی کبھی آپ کو ڈسٹرب کرتے ہوں گے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، اس طرح کی سچویشن اس ستارے کے اندر جو ہے اس نے آپ کو پریشان کیا ہوگا، مگر 6 جون سے ایک ستارہ ایسا آتا ہے وہاں پہ جو کہ آپ کو پازیٹیو کرنا مینٹلی شروع کرتا ہے، اور اللہ کرے کہ اس نے فرق ڈالا ہو۔ یہ جو بمپی سی رائٹ دماغ کی برین ڈیوائس کی جو ہوئی بھی تھی، خدا کرے کہ اس میں فرق آیا ہو کہ اس ستارے نے آپ کو یہاں پہ اپنی مشکل سے نکالا ہو۔ 24 25 والی ڈیٹس اللہ کے فضل سے ٹھیک ہیں، آسان ہیں، اچھی ہیں۔ 26 27 کی جو ڈیٹس ہیں، اچھا جی، یہاں پہ جو آپ کا خانہ مال ہے جیمنائز، اس میں اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالترتیب، میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے کہنا شروع کیا تھا کہ 9 جون سے اینڈ 10 جون سے 2 تاریخی ستارے انٹر ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہیں سے منو سلوا کی طرح آپ کے لیے فائنینسز کا اللہ پاک بندوبست کریں، مال کی آسانیاں میرا رب آپ کو نوازیں۔ اس کے بعد ایک ستارہ آتا ہے جو کہ وہاں پہ داخل ہوتا ہے 22 جون کو، یعنی ابھی لاسٹ ویک میں ایک اور ایڈیشنل مبارک ستارہ قدم رکھتا ہے۔ یہ میں کہتی ہوں کہ اللہ میرا کرے کہ اور ایسی آسانی ہمارے 12 ستاروں کے لیے ہو، کہیں سے وراثتی مسئلوں کو حل کر کے پیسے نکالنے ہیں، یا کہیں سے بھی آپ نے اپنے فائنینسز کو آسان کرنا ہے، تو اس سے زیادہ مبارک وقت آپ لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا جتنا مبارک وقت یہ ہے۔ یعنی میرا رب آسانی فرمائے کہ اس وقت پیسے کو ملٹی پلائی کرنا، پیسے کو ڈبل کرنا، اس سے زیادہ آسان اور مبارک وقت آپ لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا جو کہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو اللہ آپ کے رستوں کو آسان کریں جیمنائز، خانہ مال کی اس خوبصورت برکت سے فیض یاب ہوئیے۔ 12 سال کے بعد یہ قدرت اپرچونٹی آپ کو دینے جا رہی ہے۔ اب
कितना किस्मत में लिखा है, अरबपति होना है, खरबपति होना है, ये गैब का इल्म है जो कि मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतनी प्यारी रोशनी ज़रूर है कि अल्लाह पाक करे कि आसमान पे जो खुदा ने खूबसूरत नक्शा बना हुआ है वो मेरा रब ज़मीन पे भी कुन बोल दे। उसके अलावा जब मैं आगे देखती हूँ तो 18 जून से एक सितारा जिसने आपके होम लैंड से रिलेटेड मामलात को भी ज़रा पॉजिटिव करने की कोशिश करनी थी। आपका जारहाना रवैया आप करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए 22 से 29 हफ्ते में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। पहली बात तो ये है कि आप के जो कोई 2-2.5 साल से आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन चल रहा था, अगर कोई चल रहा था, तो इस हफ्ते आप उसे निजात हासिल कर सकते हैं जब चांद की आखिरी तारीखें हों, क्योंकि अमावस इस हफ्ते आपके घर में जेमिनी में है। तो जब ब्लैस्मिक मून होता है या डार्क मून होता है या अमावस होता है या चांद की आखिरी तारीखें होती हैं, तो उस टाइम पर आप अपने तमाम अंदर की नेगेटिविटी, अपना गम, उसको अपने अंदर एक जगह इकट्ठा करके उसे अपने दिमाग से बाहर कर देते हैं, यूनिवर्स के सपोर्ट कर देते हैं। तो उसके अपने रिचुअल्स होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि रिचुअल्स ऑफ डार्क मून, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल आखिरी 29-30 जो चांद की तारीखें होती हैं, इन तारीखों पर अगर आप अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, अपनी एयर को क्लीन करते हैं, तो जो नेगेटिविटी है या ईवल आए है या जो चीज़ नेगेटिव आपके साथ चल रही थी, उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो हफ्ता है, इसमें ऐसे लगता है कि जैसे आपके जो उम्मीदें हैं ना, जो लोगों से वाबस्ता है, लोग उस पर शायद पूरा ना होते हैं। लोग आप की उम्मीदों, हो सकता है कुछ लोग आपकी नज़रों से गिर जाए, उम्मीदों पर पूरा ना उतरना, इस हफ्ते की लोगों का आपकी उम्मीदों पर ना उतरना, इस हफ्ते की बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है। लेकिन इसे आपको समहाउ फर्क नहीं पड़ा, समहाउ आपको इससे फर्क नहीं पड़ा, आप इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप जिसे समझ रहे हैं, अगर ये बंदा मेरी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरा तो उसकी ये वजह है। और उसके साथ रीजन ये है कि आप मरकरी, आपका अपना रूलर आपके अपने घर में है, सॉरी, आपके अपने घर से निकलकर आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस जो होता है ये आपके सेल्फ वर्थ का होता है। सो जो चीज़ें आपके सेल्फ वर्थ पर ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं, उनको ये क्लियर कर देगा। सो आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, ये वो टाइम है जो क्लियर, खुद ब खुद क्लियर होंगे। जो किसी ने आप पर कीचड़ उछाला है, वो कीचड़ उसके अपने ऊपर पड़ता दिखाई देता है। फिर आपने एक और चीज़ पर भी गौर करना है कि आपको जैसे एक इम्पल्स आपके अंदर आता है बगावत का, आपका दिल चाहता है कि आपने बगावत करनी है, आपने इसकी बात भी नहीं माननी, उसकी बात भी नहीं माननी। ख़ास तौर पर आपका जो आपको जो घर में पाबंदियां हैं, उनको आपका दिल चाहेगा कि जो घरेलू पाबंदियां या घर पे जो मुझ पर बातचीत हो रही है, उससे आप निकलना चाहते हैं। एंड आई वुड एडवाइज यू इस वीक, बिकॉज आपका 26 तारीख को मरकरी ने आपके दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में चले जाना है। 26 को आपके रूलर की मूवमेंट है, और ये मूवमेंट आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये जो आप सारा मंजर आपके अंदर है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं बहन भाइयों से, या आपके ऊपर ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, या आपको फ्रस्ट्रेशंस फील हो रही हैं मेंटल, और लोग आपकी नज़रों से घेर रहे हैं, और लोग आपके लिए आपका बुरा चाह रहे हैं, और मुंह से कह रहे हैं, या बॉडी लैंग्वेज से कह रहे हैं, आपको मैसेज मिल रहा है, ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपको इस हफ्ते थोड़ा सा इनकम इंक्रीज पर गौर करना चाहिए। हो सकता है कि आपका कोई साइड बिजनेस, कोई साइड इनकम आपकी स्टार्ट हो जाए, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपका जो रूलर है वो इस हफ्ते आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। कैच पिक आपने करनी है, चाहे वो आपको ख्वाबों में दिखाई दे, चाहे वो आपको बैठे बैठे किसी की बातों से कोई आइडिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोगों की बातों से भी आपको आइडिया आ सकता है, और लोगों के मतलब कोई आपको ताना ही दे दे, उसमें से ही आपका पॉइंट मिल जाएगा। सो लोगों की बातें सुनते रहिए, इर्द गिर्द अपने कान आंखें खुली रखिए, और बिटवीन द लाइंस पढ़ते रहिए। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू मल्टीपल बेनिफिट्स। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते का जो नया चांद है वो भी आपके दूसरे घर में, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने लकी डे 24 बनता है। 24 तारीख जो है द लकीस्ट डे ऑफ द ईयर, उस दिन को कहते हैं जिस दिन जुपिटर और
सन का कंजंक्शन होता है, ये इनका कंजंक्शन हो रहा है आपके दूसरे घर में। सो फॉर फ्रॉम मनी, फॉर सेल्फ, दिस कैन बी अ वेरी लकी डे। इस डे को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और इसको आप कई तरह से जो भी आपको लकी डे अगर कोई चाहिए तो दैट इज 24th ऑफ द मोस्ट लकी डे ऑफ द ईयर इज 24th। और उसके बाद आपकी जो वाइब है, लकी वाइब है इस हफ्ते की, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कह रही है कि आपका, जैसे कहते हैं ना, ये हफ्ता यूनिवर्स जैसे आपके साथ आपके काम मुकम्मल करवाएगा। बहुत सारे नामुकम्मल काम आपके मुकम्मल होंगे और आपको जैसे होता है ना, वहाँ से मदद आएगी जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं था कि मदद जो है वो ऐसे भी मिलती है। इस तरह से यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी, वो भी हमने यहाँ पर भी देखा था, लोगों का झूठा इल्जाम लगाना, झूठे बहतान लगाना, आपको बिला वजह बदनाम करना, अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचाना। आपकी लव वाइब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है दिस इज अ वीक व्हेन यू विल फाइंड योर लव, you will fall in love or you can find your tribe। और अगर आपकी लव लाइफ में कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स थे तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं। उसमें थोड़ी सी कोशिश आपको खुद भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो है इट्स गुड वीक फॉर लव। आपका जो लकी स्टोन है वो एक सीप जैसे कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल, उसमें से 7 कलर्स जैसे निकलते हैं। रेनबो मदर ऑफ पर्ल आपका लकी स्टोन है। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज, येलो फ्लावर्स विद ग्रीन लीव्स। ये जैसे एक बुके नहीं बना होता, दिस इज अबाउट 4 और 5 फूल हैं और उनके ऊपर सब्ज पत्ते हैं, सब्ज शाखें हैं और उन्हें एज बुके बनाया गया है। ये कुदरत की तरफ से आपको ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट होगी दैट यू आर गेटिंग अ बुके, या आपको वेलकम किया जा रहा है। आपका डिवाइन मैसेज बड़ा खूबसूरत है कि किसी की मोहब्बत हासिल करने की खातिर खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जिसकी खातिर आप खुद को बदलेंगे शायद वो आपके बदले हुए रूप से भी सेटिस्फाई ना हो। और बेहतर ये है कि आप अपने जो मोहब्बत है अपने दिल में, इंसानों के साथ साथ रब की मोहब्बत भी अपने दिल में ऐड कीजिए। वो मोहब्बत